Good morning, friends. First of all, I found many good things in some of you, beta. I found that many students are doing their homework, as well as with that homework, they are also finding some more problems, and they are eagerly waiting for new problems. So on my WhatsApp, students are sending me the request, sir, solve this problem, sir, when you are going to take this, when you are going to take this. So today I think it's better to explain you my future plan. Okay, so my plan of further teaching, so that you will not be eagerly waiting, you will be knowing what sir is going to teach. ओके, तो पहले बेटा मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनफाइनाइट नेटवर्क। इसको ही बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम, इसको ही बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। उसके बाद में बैलेंस तो सिखाया है मैंने, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड विटस्टन्स नेटवर्क। इसमें ही आता है स्टार एंड डेल्टा फॉर्मूले। स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट ऑल्सो वी विल सी। उसके बाद में सम स्पेशल प्रॉब्लम्स जैसा क्यूब वगैरह वो भी दिखाऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज चार्जिंग एंड discharging of capacitor. So this will be my plan. Of course, if I'll find some still more important things, I'll be going to add. And beta, one thing, whatever you're asking now, I'm never angry about that, huh? Don't make misunderstood. Okay, so whatever you are asking, actually I am happy for that, that my students are means what I can say, that aware of what they want to study. You are good aware. Okay, so thanks a lot for your queries. Thanks a lot for queries. Queries must be there. At one moment it may be possible that I'm not able to solve at right now. I will do that and I will send you. I may send the pic of that. It happens because I may be doing some another work. Class 12 students are also there. Their CET exam, that study is also there. JEE students are also there. Okay, so like this it is there. So one by one I will complete each and everything. Okay, without wasting the time, let's go for one by one. First, today it may not be complete all, because I will go very slowly one by one by taking one by one problems. Okay, so first we'll study infinite network or ladder problems. Okay, before that, one problem is there. Okay, that let us complete. Okay, otherwise I'll do one thing. We'll start with that problem we'll take afterwards. So this will be now problem number 1. So this is the ladder. Ladder means सीढ़ी जैसे बोलते हैं ना उसको, सीढ़ी को जैसे ऐसे होते हैं ना, तो सीढ़ी बन गया तो कितना भी बन सकते हैं ना उसको, ऐसे आप पर्टिकुलरली इतना ही होता है वैसे नहीं बोल सकते उसको। तो एक बाजू को हमने इनफाइनाइट रखा है, मतलब वो कितना भी बढ़ सकता है। इट में इंक्रीज फर्दर, एनी नंबर इट में इंक्रीज। तो यहाँ पे दिया है सी 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 और सी, सब सेम है। हाँ, पहला टाइप 1 all are same, this is important. Type 1 is all are same. I do have only one marker, permanent marker, that is why I am using it.
once I need it, that time only. Lockdown. Okay. So beta, now I'll take a grip. No, I will go fast. We have to calculate equivalent between A and B. Okay. So how it comes, why this is so these all questions you don't keep in your mind, because lastly you have to appear for the exam. Nobody is there to ask you how it is coming. They are going to ask you solve this. Out of this, what will be the answer? You must be able to solve this. So how this come, what is that procedure? Don't go in procedure, otherwise it will take a lot of time. Once the lockdown will be free and I will be having free time, then you may come to me and ask me personally. But in the class, I'm not supposed to explain why and how. Okay, I will try to explain it, but with the constraint of the time. Okay, now first thing, ये लिख लिया आपने बेटा? ओके, ये लैडर प्रॉब्लम 1 है, इनफाइनाइट सर्किट है, क्या करना है? पहले तो सर्किट को दो पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करो. मतलब व्हाट इट मीन्स, जो पार्ट रिपीटेडली आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? सी 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 सी. तो पहले वाले पार्ट को बाकी पार्ट से अलग करो. इसको बोलो x, इसको बोलो y, और एक लाइन खींच दो, मन में खींच दो. नाउ व्हाट हैपन्स, मेरे पास सपोज इतना पैसा है सपोज, और आपने मुझे और 1 रुपया दिया, तो मैं अभी तो मिलेनियर हूं ना, मिलेनियर बोलते हैं ना इसको. तो आपने 1 रुपया दिया तो भी मैं मिलेनियर ही रहूंगा, और 1 रुपया मेरे से मांग लिया, सर मुझे 1 रुपया दे दो, वॉट एवर, इफ यू विल गिव मी 1 रुपी, or if you'll take 1 rupee from me, I will be remaining millionaire only ना. वैसे ही ये एग्जाम्पल क्यों दिया? मिलेनियर मीन्स लॉट ऑफ मनी ना, सो दैट वी कैन कंपेयर विथ इनफाइनाइट सीरीज. यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप ध्यान में रखो, मैंने एग्जाम्पल दिया वो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंसिडर द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. तो इस टाइप के नेटवर्क में आपको ध्यान में रखना है, वॉट एवर इज द टोटल, सपोज आई हैव टेकन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज एस, आई हैव नेम्ड इट एज एस. टोटल कैपेसिटेंस जितना भी नेटवर्क है उसका मिला के कैपेसिटर को मैंने बोला एस. इसमें से वॉट एवर इज गेटिंग रिपीटेड दैट आई हैव टेकन असाइड, एंड दिस आई हैव टेकन असाइड. तो अभी तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको थियरी कैसे है. ओके, इसको बोला मैं एस, ये इधर लिखा है. लिखा क्यों है? सम स्टूडेंट्स दे आर गुड इन वॉचिंग एंड राइटिंग ओवर देयर, so they may be tired of listening my lecture, so they may watch and complete their work. Now just now I have told, now as the circuit is infinite, so there will be no impact on the S. I have explained already that S will be same if I will consider any one out of the repeated combination. मतलब इसका मिला के एक कैपेसिटर रखा तो उसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम S ही बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही है ना. इसमें से एक कम कर दिया, आई हैव टेकन 1, ओके, 1 लेस, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो फिर से ध्यान में रखो, 1 network if I'll consider aside, and another network, whatever is the capacitance of total network is S. If I will not consider this, and if I will consider this, then also the capacitance is coming to be S. This is the trick. So the trick is, दिए हुए नेटवर्क को फिर से रिराइट करो. ओके, ये जस्ट कीप विथ यू. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. ये देखो बेटा, ये जो नेटवर्क दिया है उसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया. अदरवाइज व्हाट आई विल डू, you will not able to understand, otherwise I will write on the paper in front of you.
तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, इधर लिख दिया ए, इधर वो कैपेसिटर निकाला सी, बाद में यहाँ पे बी, उसका भी कैपेसिटेंस सी लिखा, और यहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस है, ओके ए सॉरी, वेरी सॉरी, बी को डायरेक्टली यहाँ से नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, बी इट इज़ हियर ना, आई विल राइट ओवर हियर, आई विल राइट लाइक दिस इज सेम, बट आपको दिखने के लिए वो ठीक नहीं दिखेगा और वो कॉम्बिनेशन रिपीट होने के लिए मेरे को प्रॉब्लम आ जाए। अभी ये देखो, ये देखो, ऐसे देखो, ऐसे। सो ये जो पार्ट है वो मैंने वैसे ही रखा है, और इस सब पार्ट को मैंने अभी बोला एस, अभी तो आपको बोला था मैं, और इसका मिला के यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है वो भी है एस। सो नाउ आई विल गो विद द कैलकुलेशंस। हाँ बेटा ये जगह थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है इट्स ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ से चालू करते हैं। देखो यहाँ पे इस वीडियो में एक ही प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो देखो इसका कैपेसिटेंस कितना है, ध्यान से देखो बेटा, एस। सो सी बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट विल बी, अभी ये देखो ये दो पैरेलल में है देखो, और ये उनके सीरीज में, तो ये और ये, तो इसको मैंने अगर यहाँ पे रख दिया, आई कैन राइट लाइक दिस ना, ए यहाँ पे सी, ठीक से देखो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे एस और यहाँ पे बी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा सी प्लस एस और ये हो जाएगा सी, और वो दोनों सीरीज में। तो फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ, सी इंटू सी प्लस एस अपॉन सी प्लस ये दोनों का सी प्लस एस, ये बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके नोटबुक में लिख के रखो, और उसको बाद में आफ्टर दैट यू कॉल दैट टू बी एस, और एक इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे बन जाएगा, एस इक्वल्स सी इंटू सी प्लस एस अपॉन सी प्लस एस। सो उसको सॉल्व करो, एस इज इक्वल टू सी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी एस अपॉन 2c प्लस एस। इसको मल्टीप्लाई करो, एस इंटू 2c प्लस एस अपॉन इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एस। अभी इक्वेशन को सॉल्व करने को जाते हैं अभी। सो 2cs प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एस। अपन को क्या निकालना है, एस निकालना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एस निकालने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस निकाला, यह भी सब एक्सप्लेनेशन है इसलिए आपको वो बड़ा दिख रहा है। while you will be solving you will be doing it very fast, no problem. So it will be s square plus 2cs minus cs minus c square is equal to 0. और इसको आप if you will solve that, I will keep that with you, that all solving I have solved that, and my answer is coming this, s is equal to root of, okay, 5 minus 1 upon 2 into c। तो इसका आंसर चेक करो, ये आंसर है। देखो अगर नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे डालो, मैं चेक करता हूँ, लेकिन इट इज़ देयर। सो दिस आंसर विल बी, एस विल बी, दिस इज एस, और ये 5 है, ये 5 है, और ये एस, ये 5 है। s is equal to root of 5 minus 1 upon 2 into c. So I hope you have understood that. Solve it and give the answer to me. Thanks a lot.